I'm going to talk on a topic which is it's a challenge constantly. हम आज शाम एक टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Betrayal is very difficult to handle. धोखाधड़ी या बेवफाई एक ऐसा चैलेंज है जिसको हल करना बड़ा मुश्किल है। Psalm 41 verse 9 जैसे ज़बूर 41 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, is written by David, the Psalm of David, ये दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है। and he's writing, my own familiar friend in whom I trusted, who ate bread with me, has lifted up his hand against me. और लिखा है कि बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। Now there are two situations this one psalm is talking about. ये ज़बूर दो तरह के हालात के तरफ से बात कर रहा है। It's talking about David's experience with Ahithophel, his counselor. ये दाऊद के तरफ से बात कर रहा है। You see, David had Ahithophel close to him as one of his wise advisors. दाऊद को काउंसल करने वाला अय्यूब था जो उसको इस्लाह देता था। How many of you are pastors here? कितने पास्टर यहाँ मौजूद हैं? अगर अपना हाथ ऊपर करें जो पास्टर्स हैं। You know what I'm talking about. आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। Because at some point in your life journey, you are going to go through this experience. क्योंकि आप पास्टर हैं, आप इन मुश्किलात का सामना जरूर करेंगे। You don't need to pray for it to happen. It will happen. आपको इसके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद होता जाएगा। I met a young pastor, very large church, Sri Lanka, many years ago, 3-4 years ago. मेरे एक बहुत बड़े पास्टर हैं, यंग पास्टर श्रीलंका में। And he told me, Pastor, in our church, everybody loves me. I don't have this problem. और वो नौजवान मुझे कहने लगा कि मेरा चर्च मुझे बड़ा प्यार करने वाला है, कोई भी ऐसा नहीं जो मुझसे नफरत करता। So I smiled. He had the problem. He didn't know it yet. मैं हंसा कि इसको पता ही नहीं कि उसको प्रॉब्लम तो है, उसको पता ही नहीं कि कितनी प्रॉब्लम है। And when I met him 6 months later, it was a different story. और फिर जब 6 माह बाद उस पास्टर से मेरी मुलाकात हुई तो उसने नई कहानी बताई। Betrayal is real. धोखाधड़ी हकीकत है। So we have to learn how to walk past it. हमें ये सीखना है कि हम इसमें से कैसे गुजर सकते हैं। And what makes betrayal very painful is because often the people who betray you are those closest to you. ये इसलिए बहुत तकलीफ दे बात है कि आपको धोखा वो लोग देते हैं जो आपके बिल्कुल करीब हैं। When betrayal happens in a congregation, it's not so bad. But when betrayal comes from a leader in your church, that can be very challenging and painful. बाद दफा अगर तो कलीसिया में से कोई बगावत होती है, धोखाधड़ी होती है, तो इतनी तकलीफ नहीं पहुंचती जितनी लीडर्स से पहुंचती है। But David, one of the greatest kings that ever lived, दाऊद जो है एक बहुत अजीम बादशाह है, called a man after God's heart, जो कि खुदा के दिल के मुवाफिक है, had to face that experience. और उसको इन बातों का तजर्बा करना पड़ा। And so you might be sitting here and you are carrying some hurt and disappointment from some betrayal. हो सकता है कि आप यहाँ पर बैठे हों, लेकिन आपका दिल भी किसी ने दुखाया। I'm here to try to help you walk past it. हाँ, मैं इसलिए आपके दरमियान मौजूद हूँ कि आप ये सीखें कि किस तरह से हम इन मुश्किलात से The second reference in this psalm is to Judas who would betray Jesus. और फिर दूसरा जो हमें रेफरेंस मिलता है, Now Jesus, यीशु की यहूदा ने मुखालफत की। these are in your notes. Jesus was betrayed by Peter and Judas who were close. ये सारे हवाले आपके नोट्स में मौजूद हैं। आपको पता है कि यहूदा ने यीशु से बेवफाई की। But the two betrayals were different in nature. लेकिन यहाँ पर पतरस और यहूदा ने जो धोखा दिया है, इन दोनों में फर्क है। One betrayal was when Judas went and sold Jesus for 30 pieces of silver. एक धोखा उस वक्त है कि जब यहूदा बाहर गया, बाहर उसने यीशु
का सौदा कर दिया, because he saw no future with Jesus. क्योंकि उसने अपना मुस्तकबिल यीशु के साथ ना देखा। So sometimes in your ministry, people will see no future with you and they leave you. आप बार दफा आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको इसलिए छोड़ जाते हैं कि जब उनको अपना मुस्तकबिल आपके साथ नजर नहीं आता, Because they are serving God with the wrong motivation. क्योंकि वो खुदा की खिदमत तो कर रहे हैं लेकिन मुहर्रकात गलत है। Somebody said this, the biggest challenge to number one is often from number two. ये किसी शख्स ने कहा है कि किसी शख्स का जो नंबर 1 है वो नंबर 2 बन जाए, Because the number two doesn't understand that that is their calling and position in life. क्योंकि जो दूसरे नंबर पर है वो अपनी बुलाहट से भी वाकिफ नहीं कि उसने खिदमत कैसे करनी है। Now I talk to pastors, maybe 2,000 pastors a year, मैं तकरीबन साल में 2000 पास्टर से बात करता and हूँ I talk to assistant pastors. और फिर मैं असिस्टेंट पास्टर से बात करता हूँ। And when I look at the two, I can tell where each one is positioned. मैं जब दोनों तरह के लोगों से बात करता तो मुझे पता है, मैं उनको बताता हूँ कि आपकी असल पोजीशन क्या है। You see, within all of us is the desire to do great things for God. हम सबकी ये डिजायर होती है कि हम खुदा के लिए कोई बड़ा सा काम करें। The disciples had the same problem. इसी तरह से शागिर्दों में भी प्रॉब्लम था। Now I know you all don't have that because you all are very spiritual. मैं फिर समझता हूँ कि आप सब तो बड़े रूहानी हैं, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना हो। Jesus was going to the cross in John chapter 10. आज यूहन्ना की इंजील में 10वें बाब में हमें पता चलता है कि यीशु सलीब की तरफ जा रहे हैं And the disciples are having a conversation who's going to be greatest. और शागिर्द आपस में मशवरा कर रहे हैं कि यीशु के बाद हम में से बड़ा कौन होगा। Self-interest had taken him. और इसी तरह से वो आपस में बात करते रहे। And Jesus said, no problem. If you want to be great, you got to be servant of God. यीशु ने उनको सलाह दी कि अगर तुम में से कोई बड़ा बना जाए तो वो छोटा हो जाए, बड़े की खिदमत करे। You see, in the kingdom of God, we need a renewed understanding of what biblical servanthood is about. बिब्लिकल जो खिदमत का काम है, खुदा की बादशाही में हमें इसको समझना है। So Judas departed from Jesus because he saw no future. यहूदा इसलिए यीशु को छोड़ गया क्योंकि उसको अपना मुस्तकबिल मसीह के साथ दिखाई ना दी। But it's very interesting because in John chapter 12, क्योंकि यूहन्ना इंजील में बार में in the story of Mary and the anointing, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जब मरियम मगदलीनी was but one of his disciples, Judas, क्योंकि जब मरियम मगदलीनी ने इत्र को इस्तेमाल किया तो सबसे पहले मुखालफत यहूदा ने की। he's telling Jesus, you know that ointment that this woman poured on your feet, that could have been sold and the money used to feed the poor. क्योंकि इसने यीशु को सलाह देने की कोशिश की कि इस औरत ने जो इतना कीमती इत्र तेरे पाँव पे निछावर कर दिया है, ये बेचकर बहुत से गरीबों की मदद की जा सकती है। But he didn't really care for the poor. The next verse. असल में अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो पता चलता है कि उसको कोई गरीबों की फिक्र नहीं थी। And Jesus rebuked him. और Somebody's getting a call from heaven. किसी को आसमानी बुला रहा है। There also heaven, so I'm quite used to it. कोशिश करेंगे वो बंद कर दे। मैंने अपना चेक किया शायद यहाँ। Where I come from, we make sure you put your phone off. क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ मुझे पता है कि मैं वहाँ हमारा रिवाज है कि हम फोन बंद कर देते हैं। This is grace. Next one will be judgment and condemnation. क्योंकि अभी तो फजल है, इसके बाद अदालत होनी है। You know, I don't know what pastors did before they had mobile phones. मुझे नहीं पता कि पास्टर जो हैं क्यों इस तरह से इतना ज़्यादा फोन का कसरत I'm talking as a pastor. मैं पास्टर के तौर पे आपसे बात कर रहा I sometimes feel pastors are more on Facebook than they're reading their Bibles. मुझे पता है कि बहुत से पास्टर फेसबुक पे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं बाइबल की बनिस्बत। Hello, am I right or wrong? Yeah, I want to see that's happening. I want to see what this one is doing, that one is doing. That's a distraction. हमारी बड़ी सोच होती है कि हम लोगों को देखें कि लोग क्या कर रहे हैं
फेसबुक I also face the same temptation. मुझे भी इस तरह की आजमाइशों का सामना करना होता When I go to office, I knock my phone off. है। जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ फोन बंद कर देता हूँ। But then somebody says, "But you're the pastor." लेकिन बहुत से लोग कहते हैं लेकिन आप तो पारी हैं। My first responsibility is to hear from God. मैं उनको ये कहता हूँ कि मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं खुदा की सुनूं कि वो क्या कहता है, Not to listen to your story about you having a toothache. क्योंकि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि आपकी स्टोरी क्या है। When people in my church tell me they have a toothache, I tell them go and see doctor and take the tooth out. अगर बड़े लोग मुझे आके बताते हैं कि मेरे दांत में दर्द है तो मैं कहता हूँ डेंटिस्ट के पास जा दांत कटवा लो। If they have a headache, I say take Panadol. अगर उनके सामने दर्द होती है तो मैं कहता हूँ भाई पैराडोल खा लो। I don't have the healing ministry. Talk to Benny Hinn. मेरी हीलिंग मिनिस्ट्री है, अगर हीलिंग चाहिए तो बैनी उनके पास जाए। Acts chapter 6, my first responsibility is to learn to hear from God. अमाल की किताब में छठे बाब में मुझे पता है कि मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं खुदा की बात को सुनूं। One pastor told me, "Pastor, I like to do what you do." एक पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर मैं वो करना चाहता हूँ जो आप करते हैं। So I told him one secret, very easy. मैं कहता हूँ ये बड़ा आसान है। I said, talk less and listen more. मैंने उनको बताया बोलो कम सुनो ज्यादा। 14,000 times in the Bible God speaks. 14,000 मरतबा कलाम पाक में लिखा है कि खुदा बोलता है। 14,000. 14,000। And sometimes we just need to be still and hear what God is telling us. बाज़ दफा हमें बिल्कुल चुप हो जाना चाहिए और खुदा को मौका देना चाहिए कि खुदा आपसे बोले। So what happened with Judas? यहूदा के साथ क्या मसला था? Verse 7 and 8. Jesus rebuked him in the presence of the other disciples. दूसरे लोगों की मौजूदगी में यीशु ने यहूदा को बताया, And he got offended. लेकिन यहूदा को जब उसकी इस्लाह की गई तो उसने बुरा मनाया। Now in Eastern cultures, people get offended very easily. हमारे मशरिकी माहौल में लोग आसानी के साथ बुरा मना जाते हैं। I don't know, there's something wrong in our culture. पता नहीं हमारे कोई सकाफत में कोई मसला है। Like Sunday morning, I'll preach a message. मैं इतवार को मिसाल के तौर पर मैसेज देता हूँ। And somebody will say, "Pastor, you are preaching at me." अब और बाद दफा होता है कि लोग कहते हैं तू हमें ला के कलाम सुनाया। I don't know what's going on in their life. मुझे नहीं पता कि उनकी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है। But कि हम अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बरकत को नाज़िल करें। that's the word of God. ये खुदा का कलाम कहता है। And so let us stand. इसलिए हम थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे। I've been praying this morning, God bless this nation. आज सुबह भी मैं दुआ कर रहा था कि खुदा इस मुल्क को बरकत दे, Bless its leadership. इस मुल्क में लीडर्स को बरकत दे। God says that we have to pray for the leadership of the nation. हमने खुदा के कलाम के मुताबिक लीडर्स के लिए दुआ करनी है। And I believe God wants to turn this nation around in an economic way. There's so much hardship, so much struggle, so much pain. People are. See, when they come into the church, they already have a spirit of offense, and my words might bring the spirit of. असल में उनकी जिंदगी में पहले ही कोई ऐसा मसला होता है, जब वो कलाम सुनते हैं, खुदा का कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है तो उनको वो लगता है। So the first betrayal you will experience is when you preach God's word and people get convicted and get condemned, and then they find fault with you. आज जब आप खुदा का कलाम पेश करेंगे तो सबसे पहले आपको उस वक्त मुखालफत का सामना करना पड़ेगा जब आप कलाम सुनाएंगे और वो लोगों को चोट लगाएगा और लोग कहेंगे कि आपने मुझे And it's just a question of time. They go to another church, wait there 2 years, and the same spirit will emerge. और फिर वो एक चर्च से निकल के दूसरे चर्च चले जाते हैं, लेकिन वो उसी रूह के ताबे रहते हैं। That's one type of betrayal. ये एक धोखाधड़ी की मिसाल। As pastors, you got to discipline people. हमने पास्टर होने के नाते लोगों को मुनज़्ज़म करना है, But we don't like that. लेकिन We have to do it. हम इसको पसंद नहीं करते, लेकिन हमने ऐसा करना है। And so sometimes people will walk away. इसीलिए बहुत से लोग चर्च से चले जाते हैं। But you can't sit and cry there what is wrong. क्योंकि आप ऐसे लोगों को कभी भी देखेंगे कि वो इस बात पर रोए चलाएं कि ऐसा क्यों हो गया। They are going away anyway. वो किसी न किसी तरीका से आपको छोड़
जा सकते हैं। John chapter 6, 66, 67, it's in your note. Jesus had a hard saying and some of his disciples slept. यूहन्ना की इंजील में छठे बार में 66 और 69 आयत अगर आप पढ़ते हैं तो आपके नोट्स में है कि शागिर्दों में से बहुत से शागिर्द यीशु को छोड़ के चले गए। Then he looked at the 12 and said, "Do you want someone to go?" और फिर जब यीशु ने 12 को देखा तो उनको भी कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। Your calling as a pastor is not defined by who stays and who goes, but how faithful you are to what God has placed in your hand. आप पासवान होने के नाते इस बात को समझें कि आपकी बुलाहट ये है कि आप खुदा से वफादार रहें। आपकी बुलाहट ये नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन ठहर रहा है, कौन जा रहा है। So Jesus was betrayed by friends. फिर यीशु को धोखा उसके दोस्तों ने दिया। He was betrayed by the multitudes. वो भीड़ से भी धोखा खाता And he was betrayed by a nation. और फिर कौम से भी धोखा खाता। The nation of Israel betrayed him. इसराइल ने यीशु को धोखा दिया, But he walked past it. लेकिन वो उस पर असर न कर सके। The second type of betrayal is Peter's betrayal. फिर हमें दूसरी जो धोखाधड़ी नजर आती है वो पतरस की धोखाधड़ी। When they asked Peter, "Are you a disciple?" He said, "No, I don't know them." आपको पता है कि जब यीशु को कहा गया सिपाहियों ने कि क्या तू भी उसके साथ हो जाएगा? नहीं, मैं उसके साथ नहीं था। Now this also happens in the church. चर्च में भी ऐसा होता है। You're a pastor, आप पास्टर हैं, and somebody talks about you something unfair and unreasonable and untrue. आपके तलक से कोई शख्स आपके खिलाफ कोई बातें करता है जो सच्ची नहीं है, And they don't say anything. और वो बिल्कुल चुप सुनते रहते हैं, They remain silent. बिल्कुल चुप रहते हैं, They don't defend you. और वो आपको डिफेंड नहीं करते। I have people like that. मुझे पता है मेरे पास ऐसे लोग हैं। God keeps them there to make me humble. वो इसलिए मेरे चर्च में है ताकि मैं हम्बल हो जाऊं। You know, somebody said something unfair. किसी शख्स को अगर आप ऐसा सुने कि वो उसने नामुनासिब बात कही है, They didn't defend me. It was untrue, but they didn't defend me. They remain silent. हालांकि वो गलत बातें मेरे तरफ से बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे डिफेंड नहीं करेगा, Somewhere deep in their spirit is an attitude of offense. क्योंकि उनकी रूह में कहीं गहरे तौर पर कोई ऐसी चीज छुपी हुई मौजूद है जो मेरी मुखालफत करते हैं। So two types. ये दो तरह के लोग हैं। And you and I have to learn to walk past those. हमने ये सीखना है कि इन दो तरह की मुखालफत या धोखाधड़ी से गुजरना। God's purpose for our lives is greater than our greatest disappointment. याद रखें कि खुदा का मकसद हमारी जिंदगी में ज्यादा अहम है बजाय इसके कि ये सारे मामला। In the book of Hosea chapter 10 verse 2, it talks about when the heart is divided, so will be the loyalty. होशिया की किताब में 10वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि जो जब दिल शिकस्तगी में है, जब दो दिले लोग हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकते। Now you can't ask people on your leadership team for loyalty. You can ask for faithfulness. Loyalty has to be given. आप इस बात को जाने कि आप लोगों से लॉयल्टी या वफादारी हासिल नहीं कर सकते, आपको उनसे फेथफुलनेस ले सकते हैं। There's a difference between the two. इन दोनों में फर्क है, फेथफुल होना और लॉयल होना, इसमें फर्क है। Corinthians says it is required of a steward he or she be found faithful. क्योंकि ग्रंथियों के खत में ऐसा लिखा है कि खादम में ये बात लिखी जाए कि वो दयानतदार नहीं। So you can demand faithfulness. आप लोगों से ये तो कर सकते हैं कि वो आपसे फेथफुल रहे, But loyalty has to be given. लेकिन जो वफादारी है ये आपको देनी है। We have the story of Elisha and Elijah. हमें एलीशा और एलिया की कहानी भी पता है। When Elisha chose to follow Elijah, जब एलीशा का चुनाव हुआ कि वो एलिया some of the को फॉलो करें, some of the other prophets tried to stop him. बहुत से नबी थे जिन्होंने उसको रोकना चाहा, But he said, "No, I'm going." लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं जाऊंगा। You know, a lot of people want, "Oh God, give us the Elisha anointing." बहुत से लोग जो हैं ये दुआ करते हैं कि मुझे एलीशा का मसा दे दे। Now I got a
bachelor's degree in biblical studies from a very large college in Australia. ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा कॉलेज है जहाँ से मेरे पास BTH की So, डिग्री है। theologically I know what I'm talking. हाँ, मुझे थियोलॉजिकली पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। That was the only time that double portion was given. सिर्फ उसी वक्त रूह का दूना मिला था। Why we don't know? God is sovereign. याद रखें, खुदाई हमें बातों को समझने की जरूरत है। But Elisha gave Elijah his loyalty. अलीशा ने अपनी वफादारी एलिया के सुपुर्द की। And you know what? Loyalty gets attention, God's attention. आपको इस बात को भी जानना है कि खुदा का मकसद क्या है वफादारी की तरफ। So you might be here in the church serving in some position. आप हो सकता है चर्च में किसी पोजीशन पर काम कर रहे हो, You're not the senior pastor, हो सकता है आप सीनियर पास्टर ना हो, but somewhere somehow you want to do bigger things. हो सकता है कि आप किसी न किसी तरीके से आपके अंदर जज्बात भड़कते हो कि मैं अपने पादरी से भी बड़े काम करूं। You know, in some churches, leaders come and tell me, Pastor, my pastor is like Pharaoh. क्योंकि बाद दफा पास्टर आते हैं और वो ये बात कहते हैं कि मेरा पादरी बिल्कुल फराउन वांगू है। So I tell them, Joseph did successful ministry under Pharaoh. मैं उनको ये बताता हूँ कि फराउन की मौजूदगी में यूसुफ ने बहुत बड़ी मिनिस्ट्री की है। And all the Pharaoh pastors said amen. सारे फैरो पास्टर ने हमें If your heart is right अगर आपका दिल दुरुस्त है, and your spirit is right, अगर आपकी रूह दुरुस्त है, nothing will go wrong. आप कोई गलत नहीं You करेंगे। will eventually end up in the place God has for you. आपको खुदा ने जिस काम के लिए बुलाया करने के लिए बहुत कुछ है। When I was a young Christian, I served under Pharaoh pastor. He was like Ramesses 1, Ramesses 2, Ramesses 3. जब मैं जवान था तो मैं भी इसी तरह से फराउन पादरी के नीचे था, जैसे रैमसेस 1, 2, 3 है। He was 3 pharaohs in one package. और वो ऐसे था जैसे 3 फराउन एक में आ गए। I cried a lot, खुदा से मैं रोता रहा but I was loyal. कि लेकिन उसके बावजूद मैं वफादार। And one day God gave me a ministry of my own. आप एक दिन खुदा ने मुझे You see, खिदमत दे दी। that is the testing ground. असल में ये हमारे इम्तिहान का जमाना So है। if you are in a church here this evening, choose to be loyal, not faithful. अगर आप चर्च में हैं तो फिर आप सिर्फ दयानतदारी नहीं बल्कि आप वफादारी ढूंढें। Elisha was loyal. अलीशा जो है वो वफादार है। And in 2 Kings chapter 3, और दूसरे सलातीन की किताब में 30 बार में Jehoshaphat the king is looking for a prophet. यहाँ पर हम देखते हैं कि एक शख्स है जो आप नोट्स में देख सकते हैं जो नबी की तलाश में है। And then a servant says, Elisha, the son of Shaphat is here, who poured water on the hands of Elijah. हाँ, उसको बताया गया, हाँ हमारे इलाका में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो आपने उस्ताद के हाथों पे पानी डाला। ये एलीशा की बात है। You know, some people are waiting for big doors to open. बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े दरवाजों को खोलने का इंतजार They are कर रहे हैं। praying, oh God, open doors for me. हम के ये कहते हैं कि खुदा मेरे लिए दरवाजे खोल दे। After your pastor has his chapati and what's the other one? Gosh. And korma. Then pastor, can I wash your hands? अगर ऐसा होगा अगर आप पास्टर जो है ये सारे दुआमा खाने पीने जो तैयार कर दे और ये कहा जाए कि आप कहें कि पास्टर साहब क्या मैं आपके हाथों को धो सकता हूँ। He washing the hands of Elijah. अलीशा एलिया के हाथ पर पानी डालता था। So why do people betray one another? क्यों लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं? When their heart is divided. उसी वक्त जब उनका दिल जो है वो Second, when they have a desire for self-development. जब उनका दिल जो है मुतमईन नहीं होता। दूसरी उसकी वजह ये है कि जब उनकी डिजायर पूरी नहीं होती। Isaiah 14. यशायाह की किताब में 14वें बाब में It talks about Lucifer. यहाँ पर हमें इब्लीस का जिक्र मिलता है। He had a great gifting.
उसके पास बड़ा जबरदस्त गिफ्ट है, but he didn't know how to store the gift. लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसने इस गिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करना। I got to speak to people here who are very gifted. मैंने अभी उन लोगों से बात करनी है जो बड़े गिफ्टेड हैं। Your gift is a gift given to you by God. Steward it well. याद रखें, जो गिफ्ट आपको आपके पास है वो खुदा की देन है, उसका सही इस्तेमाल करें। You and I don't own the gift. We steward the gift. हमें जो गिफ्ट खुदा ने दिया है ये हमारा नहीं है, ये इसलिए दिया है ताकि हम खिदमत करें। So Lucifer was a worship leader. ये लूसीफर वर्शिप लीडर है He was in charge of the heavenly choir. और हेवनली जो क्वायर है उसका ये इंचार्ज। But he wanted a position of ministry that God had ordained for him. वो ऐसी मिनिस्ट्री की पोजीशन चाहता था जिसके लिए खुदा ने उसको नहीं चुना था। And that pattern I see all over the world. मैं ये पैटर्न पूरी दुनिया में देखता हूँ। A lot of gifted people don't know how to be content in their gifting. अब बहुत से गिफ्टेड लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो कैसे तैनात करें। They don't know how to be secure in that position. उनको ये नहीं पता कि वो अपनी पोजीशन के साथ किस तरह से लगे रहें। Because the heart is desperately wicked above all things, who can know it? क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है कि दिल सब चीजों से ज्यादा हीलाबाज और लाइलाज है, कौन उसको दरियाफ्त कर सकता है। Constantly we have to check the motivation of our hearts. हमने अपने दिल के मुहर्रकात को मुसलसल चेक करते रहना है। Some pastors will never have a large church. बहुत से पास्टर ऐसे हैं जिनको कभी बड़ा चर्च नहीं मिलता। And it's all right. ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। Because when you and I stand before God, we won't be asked how large our church was, but how faithful we were to what God has placed in our hands. हम जब खुदा के तख्ते अदालत के सामने होंगे तो हमें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा कि जमीन पर आपका चर्च बड़ा था या छोटा था। इस बात का पूछा जाएगा कि आप कितने वफादार और दयानदार। And I am convinced when we go to heaven and the rewards are given, there are going to be a lot of surprises. मुझे इस बात का यकीन है कि जब हम आसमान पर होंगे तो बड़ी बड़ी अजीब बातें हमें सुनने को मिलेंगी, सरप्राइज मिलेंगे। You see, the thing is, it's not our church anyway, it's his. याद रखें, चर्च हमारा नहीं है, चर्च उसका है। Jesus said, I will build my church. यीशु ने कहा मैं अपना चर्च बनाऊंगा, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। We work hard, we work faithfully, we work loyal. हम वफादारी के साथ, दयानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करते हैं। But the results are in his hands. लेकिन याद रखें कि रिजल्ट जो है उसके हाथ में। So I have learned that ownership of the church I pastor is God's, not mine. चर्च जो आपके स्पुर्द है या मेरे स्पुर्द है, ये हमारा नहीं है, ये खुदा का है। But I will do everything I have to do on my part. और मैं अपने हिस्से का वो सारा काम करूंगा जो मेरी जिम्मेदारी है। But I can't grow anything. और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। And that brings me into a new freedom in Christ. और जब मैं इस तरह से सोचता हूँ, मुझे मसीह में नई आज़ादी का तजुर्बा होता है। Jesus said, you will know the truth and the truth shall set you. यीशु ने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। So I want to encourage you, if you are a small church pastor, मैं be encouraged today. आपको इनकरेज करूंगा कि अगर आपका चर्च छोटा है तो परेशानी हो। Don't get envious and jealous of somebody else. अगर किसी का बड़ा चर्च है तो उसे जलने की जरूरत नहीं, हसद की जरूरत नहीं है। Because that can become a distraction. हो सकता है कि ये कोई डिस्ट्रैक्शन हो, मुखाफत। I have to walk past that. मैंने इनसे किनारा कशी करनी है। And I have found freedom now. अब मेरे अंदर बड़ी आज़ादी है। Because I am convinced in the world today we need more small churches than very big ones. क्योंकि चर्चेस दुनिया में ज्यादा छोटे हैं, बड़े थोड़े हैं। Now in October I am going to the second largest church in the world. अक्टूबर में जो दुनिया का दूसरे नंबर पर बड़ा चर्च है उसमें मैं जा रहा हूँ। 300,000 people. 3 लाख उनकी कलीसिया है। Yonggi Cho's brother's church. यंगीचू का जो छोटा भाई है उसका चर्च। But for me that's a very humbling experience. लेकिन मेरे लिए ये बड़ा हलीमी का तजुर्बा है। Because when I am preaching, I have been asked to invited to preach. The senior pastor is sitting there and he's taking notes. Oh,
हाँ, जब मैं प्रीच कर रहा होता हूँ तो उस चर्च का जो सीनियर पास्टर है वो उस वक्त नोट्स ले रहा होता है, and he listened to everything I said. और जो मैं बात करता हूँ वो सारी बातें बड़े गौर से सुनता है। And I realized I'm only there by the grace of God. और मैं उस जगह पर महसूस करता हूँ कि ये खुदा के फजल से यहाँ मौजूद है। You see, when you are faithful and loyal, God will open. जब आप दयानतदार हैं और वफादार हैं, खुदा आपके लिए दरवाजे खोलेगा। So if you are doing a small thing, do it well. जब आप कोई छोटी सी बात भी करते हैं, छोटा काम भी करते हैं, वफादारी से करें। Remember, we are stewards only. याद रखें, हम तो सिर्फ खादम हैं। So don't allow your heart to be deceived and be disloyal. आपने अपने दिल को समझाना है कि आप किसी तरह से बेवफाई ना करें और धोखा ना करें। You know, we read the story of Absalom in 2 Samuel 15. आज दूसरे सैमुअल की 15 बार में हमें एक स्टोरी मिलती है, Verses 1 to 12. पहली 12 आयत में। You see, Absalom found a fault in his father. अब अभी श्लोक जो है उसको अपने बाप के तलक से कोई फाल्ट मिला, And his father should have been at the gate of the city as the king. क्योंकि उसका बाप जो है वो बादशाह है, उसको उस शहर के गेट पे होना चाहिए, But he wasn't there. लेकिन वो वहां नहीं था। So Absalom said, if only I were the pastor, I can fix your problem. और अभी श्लोक ने अपने दिल में ये गुमान किया कि अगर मैं अपने बाप की जगह पे होता तो मैं कुछ और करता, But I am not the pastor. लेकिन मैं तो पास्टर नहीं हूँ, So make me the pastor. मुझे पास्टर बनना चाहिए। And Absalom turned the hearts of the people against his father to himself. और अपने ही बाप के खिलाफ उसने बगावत की और लोगों के दिलों को मरोड़ दिया। The most dangerous person on a ministry team is one who sees no future with you. बहुत खतरनाक वो शख्स हो सकता है आपके साथ मिनिस्ट्री में जो आपके साथ है और अपना फ्यूचर आपके साथ नहीं पाता। You know, the enemy works to divide what God wants to unite. जो खुदा इकट्ठा करना चाहता है, इब्लीस उसको तोड़ना चाहता है। Psalm 133. जैसे ज़बूर 133। How good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. कितनी अच्छी बात है कि भाई वहाँ मिलकर रहे। Unity is a very powerful force. मुत्तहिद रहना एक बड़ी ताकत का मुजाहरा है। And so the enemy will seek to divide what God wants to unite. जो कुछ खुदा इकट्ठा करना चाहता है, इब्लीस उसको तोड़ना चाहता है। And that happens on a team. और ये इसी तरह से हमारी टीमों में The biggest challenges are often in teams. बहुत बड़े जो चैलेंजेस हैं वो टीम्स में होते हैं। Jesus had a team and they were struggling. यीशु की टीम थी, लेकिन यीशु को बहुत सी मुश्किलात का सामना। So before you bring somebody into your leadership team, you have to test their heart out. अगर आप चाहते हैं कि किसी शख्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, उसको पहले टेस्ट करें, उसका दिल कैसा है। Is that person's heart and vision aligned with mine? कि उस शख्स का दिल और उसकी जो विजन है, क्या वो आपके साथ मुताबिकत रखती है। But what we do is we put somebody into our team, give them leadership, and then wonder why they are problem. हाँ, होता है क्या कि हम जल्दी बहुत से लोगों को टीम का हिस्सा बना लेते हैं, उनको लीडर की कोई पोजीशन दे देते हैं, बाद में सर पकड़ के बैठ सकते हैं। The Bible says, "Test the heart, for out of it flows the issue of life." क्योंकि खुदा के कलाम में ऐसा ही लिखा है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। So loyalty is a core value in leadership. लीडरशिप में वफादारी बहुत अहम है। Is the person loyal to you, committed to you? क्या वो शख्स जिसको आप टीम का हिस्सा बनाते हैं वो वफादार है और कमिटेड है? Is their focus in life aligned with yours? क्या वो जिन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर आप करते हैं, क्या वो मुताबिकत रखते हैं? You see, in a church there can be only one vision. याद रखें, चर्च में सिर्फ एक विजन, Your vision. जो आपकी है। If you have two visions, you have television. अगर चर्च में 2 विजन है तो इसका मतलब है टेलीविजन है। And if you have three, you have subdivision. अगर 3 है तो इसका मतलब है सब डिवीजन। So in your church, you have this department, that department, other department. All those departments must be aligned
with your vision. आप चर्च में देखते हैं कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है। असल में ये सारे मिलके आपकी विजन पर फोकस करने वाले हैं। And the thing is this, if you are a pastor, you can't have a new vision every year. और पास्टर होने के नाते हर साल अपनी रोजाना बदलिया करें। God gives you a vision for life. याद रखें, खुदा ने आपको पूरी जिंदगी के लिए रोया दी है And you have to give your life to pursuing that one vision. और आपने अपनी जिंदगी का इस्तेमाल उस रोया की तकमील के लिए करना है। Otherwise, what will happen is you have vision, your people have confusion. अगर आपके पास विजन है और लोगों में कंफ्यूजन है तो फिर कुछ नहीं होने वाला। You have to define your life. अगर आपके पास विजन है तो आपने बताना है कि ये क्या है। I asked pastors in Sri Lanka, how many of you want to reach the whole of Sri Lanka? और Put their hand up. श्रीलंका में मैं पास्टर से पूछता हूँ कितने लोग चाहते हैं कि पूरे श्रीलंका को कब्जे में कर लें। 21 million people. 21 मिलियन लोग हैं। So I asked them, do you want good news or bad news? मैं कहता हूँ कि आप बड़ी खबर सुनना चाहते हैं, बुरी खबर सुनना चाहते So they said, Pastor, give us bad news first. हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब पहले ਸਾਨੂੰ बुरी खबर दो। It's not going to happen. ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनको बताता हूँ कि ये बुरी खबर है, Even Jesus couldn't reach the world. क्योंकि यीशु भी पूरी दुनिया तक ना पहुँच सका। Hello? आप सुन रहे हैं? Our vision must be realistic. याद रखें, हमारी विजन एक खास एरिया के लिए, खास वक्त के लिए। Our vision must be to know Christ and make Him known. हमारी जो विजन है वो ये है कि लोगों को बताना है कि यीशु कौन है। Some people put numbers. बहुत से लोग जो हैं वो नंबर गेम में रहते हैं। I had one pastor, I let him go, salam alaikum. मेरे एक पास्टर हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं कहा कि चलिए सलाम जी। 7 years ago, reached 15,000. वो उसने कहा 7 सालों में मैं 15,000 लोगों तक पहुंचा। He's about 55 years old. वो तकरीबन 55 साल का है। So I asked him, how many in the church? मैंने कहा भाई जी थोड़े चर्च Now, कितने लोग? when I asked pastors that question, they put a spiritual look. जब मैं पादरियों से ऐसा क्वेश्चन करता हूँ, आँखें बंद करके ऐसा करते हैं। They know exactly how many in the church. उनको पता ही नहीं कि उनके चर्च में कितने लोग। They have counted every man, every woman, every child, every unborn child. They know the number. वो इतना बड़ा नंबर बताते हैं, जो बच्चे अभी दुनिया में है वो भी काउंट कर लेते हैं। And then they say about 100. फिर वो कहते हैं So तकरीबन 100। So I count the chairs. I can tell you exactly how many people in 2 minutes. मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ यहाँ कितने लोग बैठे, मैं कुर्सियाँ गिन लेता हूँ, ऐसे काउंट कर लेता हूँ। So when I count the chairs, only 50 chairs. मैंने जब कुर्सियाँ गिनी तो 50 लोग। So then I ask how many service? Only one. मैंने कहा जनाब कितनी का सर्विस कर So रहे हैं? I'm thinking people must be sitting on top of each other. मैंने देख रहा ये बंदा 100 कह रहा है, कुर्सियाँ 50 कर रहे हैं, एक दूसरे ऊपर बैठे हुए। You know, because sometimes our self-esteem is tied with the size of the church. बस दफा हमारी जो खुद गर्जी है वो चर्चेस में बड़ी होती है। I've gone through that experience and passed that. अब मैंने इन सारी बातों का मुशाहदा किया है और मैं इसमें गुजर चुका हूँ। Our responsibility is to be faithful to God. हमारी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम खुदा से वफादार हैं। So when you are thinking of somebody in leadership or planning to take somebody in another level, just do a spirit check. अगर आप किसी शख्स को किसी खास पोजीशन के लिए नामजद करना चाहते हैं, पहले उसको चेक जरूर करें। Second thing I tell people coming on my leadership team, दूसरी चीज जो मैं अपने लोगों को बताता हूँ, जो मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहता I have a chat with them. हूँ, मैं उनके साथ गुफ्तगू करता हूँ। I am not your friend. मैं उनको ये बताता हूँ कि मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। Because some people think, now I can go to pastor's house, have cappuccino, play with the kids. बहुत सारे लोग जो हैं बाहर जाके बड़ी बातें बताते हैं, आज मैं पादरी साहब से घर गया, उन्होंने कॉफी पिलाई, मैं बड़ी देर बैठा रहा। We are buddy now. बहुत ही बड़े एक दूसरे के करीब। I am the pastor. मैं पास्टर हूँ। My vision. आपके पास मेरी वजह नहीं हो सकती। And when I'm talking to them, I look into their eyes to see. जब मैं उनसे बात करता तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करता। Because sometimes they have unfulfilled expectations. क्योंकि बाज़ दफ़ा उनकी ऐसी कुछ तवक्कुआत होती हैं जिनको वो पूरा होना देखना चाहते हैं। So if we don't share these things, next Sunday they'll be putting their arm around and saying, Pastor is my buddy now.
बहुत दफ़ा अगर हम ऐसे लोगों को सिखाएंगे नहीं तो वो फिर इस तरह के बड़े बड़े दावे करेंगे, पास्टर जो है मेरा बड़ा करीबी दोस्त है। You want anything from pastor? Come and see me. I'll tell you. अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह से वो आप आए, मैं आपको बताता हूँ कैसे लोग हैं। And now you have Absalom. आप हो सकता है कि आप अबीसलोम की तरह से हो। How many of you know what I'm talking about? कि कितने लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? Because you know, we've all gone on the I'm 73. मैं 73 साल का हूँ। I should be coming like this. हो सकता है कि मैं बस ऐसे कुबा बैठ रहा हूँ। But because I learned these things a little early, I have no energy now. हाँ, क्योंकि मैंने ये इब्तदाई उम्र में ये चीज़ें सीखी, इसलिए मैं ठीक हूँ। For the first 20 years of my ministry, people made me cry. अब मेरी खिदमत के पहले जो 20 साल हैं, लोगों ने मुझे रुलाया, मैं रोता रहा। So I told myself, next 20 years, I will make them cry. और फिर अगले बार मैंने फिर कहा कि अगले 20 साल तक हूँ मैं रुलाऊंगा। Don't follow my example. लेकिन आपने मेरी एग्जाम्पल जो है इसको फॉलो नहीं किया। Unfulfilled expectations. ऐसी तवक्कुआत जो पूरी ना हो रही, They have a sense of equality with you. बात दफा लोग जो है समझते हैं कि मैं पास्टर के बराबर हूँ। So how did Jesus respond to betrayal? ऐसे जब धोखा दिए तो यीशु ने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया? If there is genuine repentance, then we forgive. अगर कोई शख्स तौबा करता है, आपके सामने इकरार करता है, हमें माफ करना। But otherwise we move on. अदरवाइज ऐसा नहीं। They were never with you anyway. वो आपके साथ नहीं चल सकते। You corrected them and they were friends. आप जितनी मर्जी उनकी इस्लाह करें, वो अपने आप को दुखी महसूस करेंगे कि मुझे ठोकर लगी। But I feel very sorry for them. लेकिन मैं उनके तरफ से बहुत अफसोस करता हूँ। Then you should give up the pastor ministry and go become a nurse in a hospital. अगर आपने ऐसा करेक्शन नहीं करनी तो फिर मनीषी छाड़कर नर्स बन जाओ। Then you can, oh no, you'll be all right. तो फिर आप लोगों को ये कहना नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा, तो कोई मसला नहीं। My wife always saying sorry. I said, you go and become a nurse in the hospital. मैं अपनी बीवी जो है वो अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, सॉरी नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैं कहता ठीक है, तू मुझे नर्सिंग कर रहा है। I tell people, you are free to leave the church, and I change the padlock so they don't come back. मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि जनाब तुम चर्च में चले जाओ, तो उसके बाद में मैं ताला ला रहा हूँ, दोबारा ना आयो चर्च पे। That might sound hard. क्या मेरे दिल के बारे में आपको पता चल रहा है कैसा है? If they don't have your heart, अगर they cannot serve your vision. अगर आपके लोग आपके दिल के साथ मुताबिकत नहीं रखते, वो आपके साथ खिदमत नहीं कर सकते। They will stay there and make your life miserable. वो आपके साथ रहेंगे तो थोड़ा जीना आराम कर देंगे। So, Judas, Jesus let him go. यहूदा ने जो धोखा दिया यीशु को, इससे हमें कुछ सीखने को मिला। But Peter was different. लेकिन पतरस ने जो धोखा दिया वो फर्क है। But Jesus in John 21 3 times asked Peter for his loyalty before he was reinstated. 21वें बार में यूहन्ना की इंजील में हमें ये जानने को मिलता है कि यीशु ने 3 बार पतरस से इकरार कराया ताकि उसकी वफादारी को दे। Do you love me? उससे पूछा गया, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता If है? you want ministry on my team, you have to follow my direction. अगर तू मेरी मिनिस्ट्री करना चाहता है मेरी टीम में, तो तुझे मुझे फॉलो करना है। Let me tell you something, friend. You are a pastor. Don't apologize for your leadership. आप अजीज हैं, आप पास्टर हैं, आपने लीडर्स के तरफ से ऐसा दे नहीं रखना। You are the leader. आप लीडर हैं That's the way God ordained you. और खुदा ने आपको इसीलिए मखसूस किया है। And you have to learn to navigate betrayal, or you will never end up in a place God wants you to. और आपको इन सारी बातों की शनाख्त होनी चाहिए कि धोखा क्या होता है, कौन धोखा दे रहा है, कैसे दे रहा है। And for those of you who are in a church doing something, अगर आप चर्च में हैं, आप पास्टर नहीं हैं, कोई भी खिदमत कर रहे हैं, some people say, "Oh, I'm doing that for God." बहुत से लोग कहते हैं, बड़ा दावा करते हैं, मैं तो सिर्फ खुदा से कर। Leadership is of God.
लीडरशिप जो है ये खुदा की तरफ से ही है। Judges 21 says, when there was no king in Israel, everyone did what was right in कज़ात की किताब में इस बात में पता चलता है कि कोई जब इसराइल में कोई बादशाह ना था a church has structure and तो all. उस वक्त लोग तितर बितर हो गए, इसीलिए जब चर्च में तरतीब नहीं होगी तो लोग तितर बितर होंगे। And God wants you to submit even when you don't feel like submitting. जब खुदा आपसे ये तवक्को करता है कि आप उस वक्त सबमिट अपने आप को करें जब हालात ठीक नहीं। Because when you submit, it becomes a blessing and protection over your life. जब आप फरोतन होंगे आपके लिए ये बरकत का सबब है। So we're going to stand now. हम थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे। I'll just sing one worship song maybe. And I want to pray for some pastors. Google somebody's message and preach on बहुत से पास्टर जो हैं वो गूगल का सहारा लेते हैं हफ्ते की रात को शाम को भी नहीं। how many of you have done that? Don't put your hand up. कितने लोग ये काम करते हैं? God wants to give you a fresh word. खुदा आपको ताज़ा कलाम देना चाहता है Manna from heaven. क्योंकि ये आसमान से रोटी है But you have to receive the manna first before you give. और आसमान से कलाम आप तक उसी वक्त पहुँचे जब आप तैयार हो। If you give somebody else's roti, not for your, अगर आप किसी दूसरे की रोटी इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये आपकी नहीं है। you can learn principles. आप असूल सीख सकते हैं दूसरे से। And don't go and preach on betrayal. Next Sunday your congregation will ask you to go. अगर आप धोखाधड़ी पर ये अगले संडे सिखाएंगे तो हो सकता है कि चर्च ही खाली हो जाए। Don't go and tell them I got a word from God. And you know. और ये जागने दसना कि मैंने आज खुदा ने कलाम देता ते अगले संडे वैसे चला देता। Jesus told Peter, feed the sheep. क्योंकि यीशु ने पतरस से कहा कि भेड़ों की गला बन गया। And there's something I've learned. एक चीज मैंने जो सीखी है, The more we see God for ourselves, the more clarity we receive on what we have to give. आज जितना ज्यादा वाज़ेह तरह से हम खुदा को देखेंगे, हम उतना ही आसानी और वजाहत के साथ लोगों की जिंदगी में देख सकते The more we see God for ourselves, the more Agar- clarity we receive. हैं। अगर हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा को वाज़ेह तौर पर देखते हैं, उतना ही अच्छे तरीक़े से हम लोगों को बता सकते हैं। And we have to receive that clarity. इसलिए हमें वाज़ेह चीज़ों को देखना है और हासिल करना है। I want to talk to you on dealing with discouragement. मैं आज आपके साथ चंद बातें सिखाऊंगा कि डिस्करेजमेंट के साथ कैसे डील करें। Whatever situation we might be in, from time to time we will face discouragement. वक्तन वक्तन हमें हौसला शिकनी का तजर्बा होता है Because life will present challenges to us. क्योंकि जिंदगी में बड़ी मुश्किलात हैं। We may not plan for challenges, but challenges come. मुश्किलात के लिए हमने प्लान तो नहीं किया होता, लेकिन मुश्किलात आ जाती हैं। And how we learn to navigate past those challenges will determine whether we finish where God wants us to finish. मुश्किलात में से हम कैसे गुजर सकते हैं, आप यकीनन खुदा में रहकर इन बातों में से गुजर सकते हैं। In the book of 2 Timothy chapter 4, 8 to 16, जब आप दूसरा तिमुथियुस चौथा बाब पढ़ते हैं, Paul talks about 8वीं आयत से 16वीं आयत तक पौलुस रसूल ने चंद मुश्किलात का यहाँ पर जिक्र किया है। You see, Paul is writing from a prison. क्योंकि पौलुस जो है वो जेल से ये बातें लिख रहा है। He says in verse 6, the time of my departure is at hand. क्योंकि पौलुस कहता है कि मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया और मैंने ईमान को महफूज रखा And there's a crown of righteousness for me. और मेरे लिए आइंदा जिंदगी में राष्ट्रवादी का ताज रखा है। And then in verse 9 he says, be diligent to come to me quickly, for Demas has left me. क्योंकि नामी आयत में हमें पता चलता है, लिखा है कि मेरे पास जल्द आने की कोशिश कर, क्योंकि दिमाग ने मुझे छोड़ दिया है। Only Luke is with me. लेकिन सिर्फ क्योंकि सिर्फ
लूका मेरे पास है। Verse 14, Alexander the coppersmith did me harm. और 14 आयत में है कि सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की। Verse 16, at my first defense no one stood with me, और all left me. 16 आयत में लिखा है कि मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया। But the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me to the Gentiles. आज सत्य में अपने मगर खुदा मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मार्फत पैगाम को की पूरी मुनादी हो जाए। So Paul is writing from a place of great loneliness. ये उस वक्त खुदा का बंदा लिख रहा है जहाँ वो तन्हाई में। You see, life doesn't always work the way we want it. आज जिंदगी उस तरह से बाज़ दफ़ा नहीं जाती जैसे हमारी ख्वाहिश होती है। Discouragement causes us to lose perspective. जब हौसला शिकनी का शिकार होते हैं तो हम अपने मामला से हट जाते हैं। In the book of Numbers chapter 11, you can just write down and go home and refer to it. Verse 11. आप गिनती की किताब 11वां बाब जो है ये बाद में जरूर पढ़ सकते हैं। The great prophet Moses said, 11वीं आयत से खुदा का अजीम why have you afflicted your servant? Why have I not found favor in your sight that you have put the burden on the people of me? क्योंकि खुदा का बंदा मूसा इस बात को कहता है क्या ये सब लोग मेरे पेट में पड़े थे, क्या ये मुझी से पैदा हुए थे जो तू मुझे कहता है कि जिस तरह से बाप दूध पीते बच्चा को उठाए फिरता है। And verse 14 he says, because the burden is too heavy for me. और फिर वो 14 में कहता है कि ये बोझ मेरे लिए बहुत ज्यादा है। So Moses is going through a time of discouragement. इसका मतलब है मूसा हौसला शिकनी का शिकार And he's feeling alone in his struggles. और इस सारी स्ट्रगल में वो तन्हा। So we also go through those experiences from time to time. और वक्तन हम भी ऐसे हालात में से गुजरते हैं Where we just feel isolated and alone in what we are doing. जब हम तन्हा होते हैं अकेले होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? We have an expectation that things will work out the way we want them to. हमारी तवक्को होती है कि जैसा हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं वैसे काम शुरू हो। But it doesn't always work out the way. लेकिन ऐसा होता नहीं है। Now, last night I came at about 1:30 in the morning and we went to a hotel. कल मैं पाकिस्तान में आया और फिर पिछली रात हम एक होटल में गए And I discovered in the room there's no heating. और होटल के कमरे में हीटर नहीं था। Now I have a lot of respect for all of you from Lahore because you all are with shirts, not feeling the cold, but I am. लाहौर के लोगों को मैं देखता हूँ आप बड़े अच्छे हैं, आप शर्ट पहनते हैं आपको ठंड नहीं लगती। And you all should be even more prouder than you all are in Lahore. और आप क्योंकि लाहौर में हैं आपको इस बात पर फख्र होना चाहिए Because now you have the Lion of Lahore, क्योंकि अब आपके पास लाहौर का शेर है। one of the greatest cricketers of all time. एक बड़ा क्रिकेटर जो है उसको वज़ीर आज़म खुदा ने बना You दिया should be very proud of him. और आपको इस बात पर फख्र होना The day चाहिए। before yesterday he drove the car. और कल मैंने देखा उसकी तस्वीर में कि वो कार भी चला रहा है। I still remember 1999 when Australia were playing Pakistan in the 50 over. He took the catch and got the cup. और 99 में 92 में मैंने देखा कि वो क्रिकेट खेलते हुए उसने कैच भी पकड़ा और उस वक्त वो कप भी जीत गए। बट Australians have still forgiven Pakistani for it. और उस वक्त से ऑस्ट्रेलिया बड़ा गुस्से से Isn't it wonderful? क्या ये अजीब नहीं है? So life will have ups and have downs. हाँ जिंदगी में शेबो फराद होते हैं But we can't allow challenges to shape our lives. आपने चैलेंजेस को मौका नहीं देना कि वो आपकी जिंदगी में बिगाड़ डालें। So the Lord told Moses, I have a solution to your problem. इसलिए खुदा ने मूसा से कहा कि तू फिक्र न कर मेरे He लिए said, हल है। take 70 leaders आपने 70 लोग लेने हैं and bring them to me. और मेरे पास लेकर आ And I will take what is on you and put it on them. और मैं जो कुछ तुम्हारे अंदर तुम्हारे ऊपर मसा है उनको दूंगा। Now that's a very important principle. ये बहुत सुनहरा असूल है। In Exodus 18, there was a delegation of responsibility, but the system wasn't working. खरूज की किताबें 18 में बाद में हमें पता चलता है किसी तरह से जिम्मेदारियां दी गई लेकिन सिस्टम नहीं चला। Now we hear, I think Harvard Institute
they teach on dedication. Exodus 18, Jethro principle. और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इस बात को पढ़ाया जाता है कि किस तरह से हम लोगों को जिम्मेदारी दे सकते हैं। I haven't gone to Harvard. I'm an ordinary person like you. हाँ, मैं आप ही की तरह मैं हार्वर्ड नहीं गया, आप ही की तरह आप सा बंदा, But I read. लेकिन मैंने ये सीखा Delegation doesn't always work. बाज़ दफ़ा जब आप किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं तो उससे काम नहीं होता। Now, so we come back to the heater. और फिर मैं वापस जरा हीटर की बात बता दूँ। So I'm taking blood thinner, so I feel cold. हाँ, मैं ये ऐसी दवाई लेता हूँ जैसे मेरा ब्लड जो है वो पतला होता है, So he said, इसलिए मुझे ठंड लगती है। coming. और वो जो वेटर है वो अक्सर कहते हैं बस आ रहे फिक्र ना करो। 20 minutes later, he brings one heater. 20 मिनट के बाद एक बंदा है हीटर लेकर आया बचा। So we ordered tea, chai. और फिर हमने चाय का ऑर्डर दिया। Half an hour later, still no chai. आधे घंटे के बाद भी कोई चाय नहीं So है। I thought maybe he gone to supermarket to buy the TV. मैंने सोचा कि शायद सुपरमार्केट गया कि चाय की पत्ती So है। I changed hotel in the morning. अब मैंने आज सुबह मैंने ऊपर चेक Now I'm in another hotel. अब मैंने एक और And I have a feeling tomorrow I have to change again. लगता है मेरे घर फिर होना चाहिए Because I'm still feeling cold. लेकिन अभी भी मुझे ठंड लग रही है। So life won't work the way we want. लेकिन याद रखें जिंदगी उस तरह से नहीं चलती जैसे हम चाहते हैं। And so you can lose your focus. और ऐसे होता क्या है कि आप अपना फोकस इधर उधर कर रहे हैं। So Moses feels he is carrying the burden of leadership alone. क्योंकि मूसा ये गुमान करता था कि सिर्फ उसी को ये जिम्मेदारी दी गई है लीडर की। And the Lord said, I have the solution. 570 people, and I will put what is on you upon them. आप खुदा ने कहा कि मूसा मेरे पास इस बात का हाल है, 70 लोग लेकर आए, जो कोई तुम्हारे ऊपर है उनको भी मैं देता हूं। They will carry the burden of leadership with you. ताकि वो लीडरशिप का बोझ उठा सकें तेरे साथ। So Mark chapter 2, we need carriers, people with a carrier spirit. हमने मरकज 2 बाब के मुताबिक ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो बोझ उठाने वाले हैं। People with a carrier spirit come alongside you and say, Pastor, I will carry this with you. और ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ चलेंगे और कहेंगे पास्टर अपना बोझ मुझे लो, मैं आपके साथ चलता हूँ, बोझ उठाता हूँ। Now in Asian countries, I have watched say somebody digging a hole. मैंने एशियन कंट्री में देखा है कि कोई शख्स अगर जमीन या गड्ढा खोद रहा है, 2 people are digging, और 2 लोग जो हैं वो इस तरह से मिट्टी खोद रहे हैं और पसीना निकल रहा है, and 3 people are watching. और 3 जनों बेखड़े की इकट्ठी कर रहे हैं। That's what I like about Asia. ये एशिया में मैं देखा है। I have people like that there also. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो ये काम करते हैं। They are not carrying. कुछ बोझ नहीं खा रहे, सिर्फ वेगन बैग खोद रहे हैं। Or somebody is pushing a cupboard up the staircase. और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीढ़ियों से कपड़ उठा के लेके जाते It's हैं, a heavy cupboard. बड़ी भारी वजनी कपड़ है और जोर लगा रहे हैं, And 2 people are just touching the cupboard. और जो उनको जो है सिर्फ कपड़ मात्र है, हाँ विचार How many of you have people like that on your leadership team? लीडरशिप टीम में आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं, Pray for them to find another place of worship. और फिर ऐसा है तो उनको चाहिए कि किसी और जगह चले जाए। Some of them may be here today. वो सारे भाई आगे फिर बैठे हो, At least they get a friend meal. लेकिन इनके बाद खाना जाने लगे जाएंगे। And you are praying, oh God, speak to them, speak to them. और हो सकता है आप दुआ करें खुदा को नहीं ना भी खिलाफ Before the food, speak to them. पेचने के खाना में डाल करें खुदा को तुझे कैसे करें तुम्हें ना डाल। So after the 70, the spirit came, the spirit of Moses went upon the 70. जब No problem. 70 लोगों का इकरार किया गया तो जो मूसा पर मसा था वो उन पर भी आ गया। So you need on a leadership team people who will do what you ask. और ऐसे टीम के लोग होने चाहिए कि जो कुछ आप कहें वो वैसा करें। Now over there we have a leadership team. यहाँ हम देखते हैं हमारी लीडरशिप टीम है And we are very appreciative for what they do. जो भी वो काम कर रहे हैं हमारी मदद कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं They are serving us and we have to honor them. क्योंकि ये हमारी खिदमत के लिए हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। But I also noticed that the big boss sitting there. तो मैं ये देखता हूँ कि बात से हम यहाँ पर बैठे हैं Because otherwise they won't carry, they are not carry. और बताया वो जो है वो काम ना करें जो उन्हें करवाना चाहते हैं।
but he is responsible. क्योंकि ये सब जिम्मेदार, And he wants to give the best to guests. क्योंकि ये चाहते हैं कि जो मेहमान आए उनको बेहतर सर्विस दी जाए। Similarly, we have to have the right people to get the right job done. इसलिए हमारी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो सही काम सही तरीके से कर सकें। 1 Kings chapter 19, Elijah gets discouraged. और एलिया को भी हम देखते हैं 19 नौवें सलाती की किताब में, पहले सलाती में लिखा है, उसने कहा अकेला मैं नहीं बचा। He listened to the wrong voice. वजह क्या है कि उसने गलत लोगों को सुना। So now you have to be careful what voice you listen to. आपने बहुत मुताबिक रहना है कि लोग आपके कानों में क्या बात कहते हैं। I am very careful whose voice I listen to. मैं बहुत मुताबिक हूँ कि मुझसे बोल कौन रहा। I want to learn to listen to the voice of God. मैंने ये सीखा है कि मैं खुदावंद की आवाज़ को सुनना, Because that is the most important voice. क्योंकि आपके लिए खुदा की आवाज़ सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। And sometimes we are so busy that we neglect to listen. बाद अब हम इतने बिजी होते हैं खुदा की आवाज़ ही नहीं सुनते। Now I was sitting there मैं जब यहाँ पर बैठा था, and my friend changed the direction of what I was doing. मैंने जो आपके साथ शेयर करना था उसको मैंने तब्दील किया, So I want to be sensitive to his voice. क्योंकि मैंने जो खुदा की आवाज़ को सुना कि खुदा क्या चाहता है कि आपके साथ शेयर किया जाए। And I'm preaching without notes also. और मैं नोट्स के बगैर अब प्रीच कर रहा हूँ। So Elijah was doing something for the advancement of God's cause. और इसी तरह से एलिया जो है खुदा की बात को सुनकर काम कर रहा था। Jezebel sent a servant, और जिसबल जो है उसने एक मुलाजिम को भेजा and the servant told something to Elijah, और एलिया के कान में उसने कुछ कहा, and he got discouraged and wanted to die. और वो इस कदर हौसला शिकली में चला जाता है कि वो मरना चाहता है। Now if he really wanted to die, he would have stayed there, he would have come and cut his neck off. और अगर वो वाकई मरना चाहता था तो वो वहाँ जाता, कोई आता और उसको कत्ल कर देता सामने। But he leaves his servant, he runs in somewhere, sits under the bush and says, I want to die. और ऐसा हो गया कि उसने खादम की बात को सुना, उसको छोड़ा और किसी और मुकाम पर जाकर कहा कि मैं तो मरना चाहता हूँ। Is that one of your congregation? What's it? के बाद From where? Huh? No, from where is he working? क्या ही वर्किंग इन बैंक। Well, not from Marbles. We're not going to go back to Marbles. Right. In Marbles, they had 2 heaters. Today, if I don't have 2 heaters, I'm going back there again. क्योंकि मालूम में उन्होंने मुझे 2 हीटर दिए और आज जो नया होटल है, अगर उन्होंने मुझे 2 न दिए मैं वापस चला जाए तो 2 से So I want to encourage you, be careful whose voice you listen. आपने बड़ा मुताल होना है कि आपके कान में कौन क्या कह रहा है। If you allow negative things into your spirit, अगर आपकी रूह में नेगेटिव बातें आएंगी, it will destroy your spirituality. आपकी रूहानियत इससे मुतासर होगी And it will take you away from the purpose of life. और फिर खुदा के मकसद से आप दूर चले जाएंगे। And so he went in the opposite direction of the divine plan. और फिर खुदा का जो इलाही मंसूबा है उसके मुखालफ हो गए। Jeremiah, the great prophet, आपको prayed पता to die. है यिर्मयाह जो है वो बहुत ज्यादा दुआ करने वाला था, You see, he had the expectation that God would work in a certain way. क्योंकि वो इस तरह की तुमको करता कि खुदा ऐसे ही काम करे। And when it didn't happen, he said, cursed be the day I was born. और फिर जब खुदा ने ऐसा नहीं किया तो वो कहता है कि मुझ पर लानत जिस दिन मैं पैदा हुआ। And in the book of Lamentations, Jeremiah's Lamentation, he complained. Whole book is about और complaining. नोह की किताब में आप देखते हैं पूरी किताब में वो कंप्लेन ही करता है। So we have to be careful what we say and what we listen. हमने इस बात में बड़ा मुताद रहना है, हम सुनते क्या हैं कहते क्या हैं, Because the enemy wants to change the direction and path of your life. क्योंकि दुश्मन आपकी जिंदगी का रास्ता तब्दील करना चाहता है। And what happens when we get discouraged is we move away from people who can help us. हम जब हौसला शिकनी का शिकार होते हैं तो फिर हम उस सिमत में चले जाते हैं जहाँ लोग आपको देखना And चाहते हैं then God sends an angel to encourage us. और फिर खुदा जो है फिर फरिश्ता आपके पास भेज सकता है जो आपको सही बातें You बताए। see, God is a God who is very gracious to us. आपका खुदा पुरफजल खुदा है। And God speaks into our life so that we can stop listening to negative voices. खुदा आपसे इसलिए बात करता है ताकि आप गलत लोगों की बातें ना सुनें।
And then he goes into a cave and spends the night there. और फिर ये गार में गया और उसने अपने आप को वहाँ कैद कर लिया, बंद कर। And the Lord comes to him and says, Elijah, what are you doing here? और बहुत से लोग वहाँ आए और कहा ये तुम क्या कर रहे हैं? You see, a cave is a dark place. आपको पता है कि गार जो है ये अंधेरी जगह है। Cave is a place of safety and security. अब बात हम ये समझते हैं कि जो गार है यहाँ कोई शख्स है महफूज हो सकता है। Men, when they want to process something, go into a cave. बहुत से लोग जब कोई इल्म शिल्म करते हैं तो वो फिर गारों का रुख करते हैं। There are some ladies here, right? How many of you are married here? कितनी बहनें जो हैं शादीशुदा जो हाथ में, Right. How many of you are not married? कितनी अनमैरिड हैं जो शादीशुदा नहीं है? Stay single as long as you can. कोशिश करो शादी ना करो। How many of you ladies know when your husband goes silent sometimes he goes into a cave, right? How many of you know that? कितनी बीवियां जो जाते हैं कि जो बंदा थोड़ा घर नहीं करता तो वो वाकई गार पे गया। Put your hand up. Don't put your hand up if he's here. अगर वे थे तो दिलेरी करो तो दे कर सकते हैं। But certain men they want to, एशियन कल्चर दे वर नॉट, when they want to process something they go silent. आपके जो खावत हैं बाज़ दफ़ा जब वो कोई काम करना चाहते हैं तो वो अलग हो जाते हैं प्राइवेसी। And then the wife will come and ask, what's wrong? What's wrong? Tell me what's wrong. और बीवी आपसे पूछे वो है कि ये दस देना नहीं मानता है, Nothing wrong. वो कोई मसला नहीं है, Tell me. वो कहीं नहीं मुझे बताओ मुझे। When the husband goes into the cave, let him stay there until he decides to come out. जब आपका बंदा गार में जाए तो उन्होंने रहने मुझे खा सका है। And all the men said, जो आदमी है वो कहे आमीन। that's something that just right there. ये हमारी इंसानी फितरत है। David went into a cave. भी गया गार में, Elijah went into a cave. एलिया भी गया And God asked, what are you doing there? और लोग आए और कहा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? And he said, I'm the only one left. क्योंकि उसने जब उससे पूछा तो उन्होंने आपको पता है कि अकेला मैं ही बचा हूँ। The second thing that can destroy you spiritually is self-pity. दूसरी बात जो आपको नुकसान दे सकती है वो खुद तरसी है। Only we are doing the job. Only we are. बाद दफा हम कहते हैं कि सिर्फ मैं ही करना है, बचा डॉक्टर ने कहा मैं ही बचा। Not true. ये ठीक है। God says there are 7,000 others who are खुदा faithful. ने कहा 7,000 लोग बचे हुए हैं। When you get discouraged, you lose sight of what God has called you to do. जब आप हौसला शिकली में चले जाते हैं तो आप खुदा का वो काम नहीं कर पाते जो जिस लिए खुदा ने आपको चुना। Second thing is when you get discouraged, you devalue your true worth as a man and woman of God. दूसरी बात, अगर आप खुदा के लोग हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते जो खुदा ने आपके ज़िम्मे लगाया है। And that affects our whole self-esteem. इसका मतलब ये है कि ये इससे हमारी जिंदगी मुतासर हो। And God has to bring you back to your life purpose. खुदा ये चाहता है कि आपकी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी में बहाल करे। I decided that God's purpose for my life is greater than my greatest discouragement. मुझे पता है कि मेरी ज्यादा खुद शिकनी से ज्यादा खुदा का मकसद बड़ा। I am not trying to finish well. I am trying to finish stronger than when I started. आज जब मैंने ये काम करना है तो ये नहीं देखना कि मैं इसको कितना अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ये पता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, अब क्या कर रहा हूँ। My wife always tells me, wives always tell the husband, always. That started in the Garden of Eden. अब बीवियाँ ये बंदे कोई ना कोई 10 दिन ये काम शुरू हुआ है अदर से। But what to do? The world is incomplete without you ladies also. लेकिन याद रखें कि औरतों के बगैर ये दुनिया काम कर We have to just grin and bear. हमने इनको सराहना So my wife always tells me, you must finish well. मेरी बीवी हमेशा ये कहती है अच्छा करो। You also have to finish well. हाँ आप, मैं कहता हूँ आपको भी जो करना चाहिए। But I say no. I don't want to finish well. I want to finish stronger than when I started. मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं अच्छा इख्तिताम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उससे ज़्यादा बेहतर करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। Sister, you are taking to show the husband. Okay. Hallelujah.
So we have to be committed to finish stronger. हमने ज्यादा मजबूती के साथ जो काम करना है उसको मुकम्मल करना। Paul is in a prison. पौलुस जो है वो जेल में है। Everybody has turned against him. हर बंदा जो है उसके मुखालिफ हो गया। Life hasn't worked the way he wanted it to. जिस तरह से वो चाहता था People have disappointed him. और बहुत से लोगों ने उसकी मुखालिफत But की। you know what he said? The Lord delivered. लेकिन उसने कहा कि खुदा ने मुझे हौसला दिया Preserve me for a purpose. क्योंकि उसने मेरी हिफाजत की है किसी खास काम के लिए। And the good news was preached more fully to me, through me to the Gentiles. और पूरी खुशखबरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए खुदा ने मुझे So when we go through discouragement, we can end up like Elijah or we can end up like Paul. अगर हम हौसला शिकनी का शिकार होते हैं या तो हम एलिया की तरह से एंड करते हैं या पौलुस की तरह से। And then the Lord tells Elijah, go and stand before me in Mount Horeb, where Moses got the 10 Commandments. और फिर खुदा ने एलिया से कहा कि किरमन की पहाड़ी पर जा जैसे मूसा पहाड़ी पर गया था। You see, when Elijah got discouraged, he had disconnected from listening to the voice of God. जब एलिया हौसला शिकनी का शिकार हुआ तो ये वो वक्त था जब उसने खुदा की सुनना बंद कर दिया। Now, 3.5 years ago, I had bypass surgery, 5 blocks. आज 3.5 साल पहले मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ, वाल बन गए। 6 months, I went through depression. और 6 महीने जो है मैं डिप्रेशन का शिकार हुआ। 6 months. 6 महीने। I asked a friend of mine overseas to pray for me. और मैंने एक दूसरे मुल्क के दोस्त से कहा कि मेरी दुआ करें। And he said, I don't know, but God's not going to heal you immediately. It's going to be 6 months. उसने मुझे ये कहा कि मुझे ये पता है कि खुदा आपको शिफा देगा लेकिन 6 महीने लगेंगे। Now 6 is the number of man. लेकिन 6 जो है ये इंसान का नंबर है। God could have done it immediately, but he didn't. अब खुदा तो चाहे तो ऐसे कर लेता है। And I went through real depression. और मैं जब 6 महीने इसमें से गुजरा तो मैं डिप्रेशन का शिकार But हुआ। 7 is the number of completion. लेकिन 7 जो है ये तामीर का नंबर है। And on the 7th, beginning of the 7th month, my depression. जो ही 7वां महीना शुरू हुआ तो मेरा डिप्रेशन खत्म हुआ। So I knew a depression. लेकिन मुझे पता है कि ये डिप्रेशन है। And I stopped reading my Bible, and I didn't pray. और 6 महीने तक ना मैं दुआ करता था ना बाइबल पढ़ता था। Can you be spiritual and get depressed at this क्या ऐसा time? हो सकता है कि आप बड़े रूहानी हो और फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो? Because we are human. क्योंकि हम तो भाई इंसान हैं। Elijah got discouraged. Moses got discouraged. Jeremiah got discouraged. मूसा हौसला शिकनी का शिकार हुआ, एलिया, यिर्मयाह। But Paul refused to allow disappointment to set the direction. लेकिन पौलुस रसूल की जिंदगी को हम देखते हैं कि वो हौसला शिकनी का He शिकार said, नहीं हुआ everybody left me. और उसने कहा कि सारे लोग मुझे छोड़ गए But Lord stood with me and encouraged me. लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा हुआ और उसने मुझे